Claude system. Claude system, sir. Yes, okay. Now it is confirmed that you are looking my shared file. So last time we have studied Linde system for liquefaction of gases, and this is called as cryogenic system, which produces liquid oxygen from atmospheric air. The similar cycle was designed by another engineer of that time, and it was Claude. And you can see the basic components are same. The only thing is cooling process has been improved by turbine, introduction of turbine here, together with regenerative heat exchanger. All components are same. We have multi-stage compressor, we have after cooler on the left, and after that we have this is a heat exchanger, and heat exchangers are 1, 2, 3, three heat exchangers, and between one of the pairs of heat exchangers, we have expansion in the turbine, and turbine gets work output WT, but it gets cooled, the compressed air further cooled down to very low temperature up to 0.3, from 2 to 5, from 2 to 5. So this process helps to get more efficiently more oxygen here in the receiver. This is receiver, before receiver here Joule Thomson. तो आप देख रहे हैं कि ये सारा सिस्टम कंप्रेसर के बाद जितनी भी ये चीजें हैं वो कूलिंग के लिए यूज हो रही है। कंप्रेसर के बाद कूलिंग करने के बाद हम आते हैं 0.6 पे 6 से हम थ्रॉटलिंग करते हैं और we get liquid oxygen separated and vapor separated, and again we send vapor to this line which helps cooling, because this is very low temperature vapor, minus 160 or less, and it gets heated after getting this heat which is coming from the compressed air. So compression process is shown in multi-stage. This is one bar, then second, third, fourth, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In 10 stages, we compress from 1 bar to very high pressure like 200 bar, and between one after process 1 and after cooler ke baad, we have process 1, 2. Between these two heat exchangers, there are 3 heat exchangers which exchange heat with cold vapor coming from the receiver, and this is being sucked by the compressor to the left. And here one line is necessary to make up gas. Make up gas is important because you are trapping here liquid oxygen. You are trapping here y kg of liquid oxygen. You are getting here to fill up the cylinders of pure oxygen. So the same amount of air should come from outside to make mass flow rate constant in the cycle. So ये जितने ये जो processes हैं ये इसकी वजह से हैं कि कूलिंग करना है। कूलिंग क्यों करते हैं? ताकि कंप्रेशन प्रोसेस फ्रॉम 1 बार टू 200 बार मल्टी स्टेज में हो और हर स्टेज के दरमियान उसकी कूलिंग हो जाए। कूलिंग होने के बाद भी, बाहर निकलने के बाद भी, अच्छा इस कूलिंग का फायदा ये है कि जो मल्टी स्टेज इंटरकूलिंग, ये कहलाती है इंटरकूलिंग, यानी ए से बी, सी से डी, ई से एफ और जी से एच और लाइक दैट, तो के, एल, एम से एन, ये कूलिंग बिटवीन 2 स्टेजेस हो रही है। और इस तरह 10 स्टेजेस में, यानी एक ही बहुत बड़ा ह्यूज कंप्रेसर है और बहुत ज़बरदस्त कंप्रेसर है, उसमें 10 स्टेजेस हैं, 10 सिलेंडर है, और बिटवीन एवरी 2 सिलेंडर कंप्रेशन के बाद दोबारा टेम्परेचर को वापस लाया जाता है कूलिंग के बाद। कूलिंग ज़ाहिर है, कूलिंग जैकेट होती है वाटर की, और वो पानी गर्म होकर फिर कूलिंग टावर में जाता है और फिर ठंडा होकर वापस आता है। तो ये कंप्रेसर के अंदर की कूलिंग है। कंप्रेसर्स के अंदर की कूलिंग इसलिए ज़रूरी है कि कंप्रेशन प्रोसेस अगर आइसोथर्मल होगा तो उससे वर्क इनपुट में सेविंग होगी, तो एफिशिएंसी होगी और एनर्जी इनपुट की बचत होगी। नाउ 1, 2 प्रोसेस, 1, 2, 5 और 6 ये एक्सटर्नल कूलिंग प्रोसेस है। कंप्रेसर से निकलने के बाद भी हमें इसको, जब देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर ये है, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑक्सीजन का ये है और ये बहुत लो है, -160 से भी कम है। तो इसको जब हम
जब तक इस टेम्परेचर से नीचे नहीं लाएंगे, ये इस एयर को जिसके अंदर ऑक्सीजन है, वो हाई प्रेशर तो है, लेकिन हाई प्रेशर का मकसद है कि हम इसके ऊपर आ जाए, यानी क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर आ जाए और फिर उसको ठंडा करके ऐसी जगह पहुंच जाए क्रिटिकल पॉइंट से नीचे कि वहां से थ्रॉटलिंग, ये जो 6-7 प्रोसेस थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, जूल थॉमसन इफेक्ट है, और वो यहाँ होता है। तो 6-7 तक पहुंचने के लिए हमने बड़े पापड़ बेले। सबसे पहले आपने एक हीट एक्सचेंजर में कूल किया, फिर दूसरे में कूल किया, फिर टरबाइन में। ये जो 2-3 प्रोसेस है, टरबाइन का प्रोसेस है, 2-3 आइडियल है, 2-3 डैश एक्चुअल है। तो टरबाइन के प्रोसेस में भी कूलिंग हम करते हैं ताकि हमें ज़्यादा ठंडा जो है ना ऑक्सीजन हमें मिले वेपर, और उसको हम उसकी मदद से हम दोबारा रीजनरेटिव हीटिंग यानी 1-2 रीजनरेटिव कूलिंग 1-2-2-5-5-6 सारे प्रोसेस ठंडी एयर से होते हैं, क्योंकि एक साइड पे ये एयर जा रही है, ये ठंडी वाली, और दूसरी साइड पे ये गर्म वाली एयर है। तो गर्म एयर अपने ठंडे वाली साइड को हीट देती है, वो हीट एक्सचेंजर। ये ऊपर वाली ये गर्म एयर है, नीचे वाली ठंडी एयर है। ठंडी और गर्म एयर के दरमियान हीट एक्सचेंज होता है, तो उसकी मदद से हम इसको 0.6 तक ले आते हैं। 0.3 बहुत हाई टेम्परेचर है, ये वाला 0.2, और 0.2 से नीचे 0.6 हम ले आए, ताकि क्रिटिकल, ये जो डोम का टॉप है, पीक है, इसको क्रिटिकल टेम्परेचर उससे नीचे 6 पॉइंट आ गया। अब अगर हम जूल थॉमसन इफेक्ट करेंगे यानी थ्रॉटलिंग करेंगे, तो हम वी विल गेट इनटू वेट रीजन, और वी विल गेट लिक्विड एंड वेपर सेपरेटेड। 0.9 is the pure liquid oxygen, 0.8 is the pure vapor oxygen। वेपर ऑक्सीजन दोबारा कंप्रेसर सक कर लेता है और ले जाता है। ये साइकिल ये वाली ज़रूरी है ताकि कूलिंग प्रोसेस हो सके हीट एक्सचेंजर्स में। तो इस तरीके से ये साइकिल पूरा हो गया, और टीएस डायग्राम आपको ये ड्रॉ करना आना चाहिए जो आपके सामने है, और सिस्टम लेआउट में सारे कंपोनेंट्स आपको आने चाहिए, कौन कौन से कंपोनेंट हैं। बहुत सिंपल है। तो इसको हम क्राउडेड साइकिल कहते हैं। मकसद क्या है कि हमें लिक्विड ऑक्सीजन मिल जाए। लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम पहले बयान कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आते हैं और यूजेज हैं, एप्लीकेशंस हैं, और वो सबसे बड़ा एप्लीकेशन तो इसका इंडस्ट्री में भी है कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन, जहाँ ऑक्सीजन बनती है वहाँ एसिटिलीन भी बनाई जाती है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन के सिलेंडर पैक करके इंडस्ट्री में भेजे जाते हैं ताकि वेल्डिंग प्रोसेस हो सके। और ऑक्सीजन जिंदगी के लिए ज़रूरी है। जहाँ बच्चे पैदा होते हैं नए, वो सांस नहीं ले सकते। जहाँ मरीज कोरोना से लोग मर रहे हैं या किसी और डिजीज से मर रहे हैं जो सांस नहीं ले सकते, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनको सिलेंडर लगाए जाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर भी ये प्लांट लगे होते हैं छोटे पैमाने पे, और जब वो पूरे नहीं होते तो इंडस्ट्रियल जो प्लांट है, जो इंडस्ट्री को प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन, उनको प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बाद का जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक कूलिंग। मैग्नेटिक कूलिंग फिलहाल जो है ना ये सिर्फ नज़र नहीं आती आपको मार्केट में, इसलिए वजह ये कि ये है तो बहुत पुराना, लेकिन ये सिर्फ लेबोरेटरीज में यूज़ होता है और रिसर्च के लिए यूज़ होता है, जिसमें आपको मटेरियल टेस्टिंग की जाती है। बहुत ही लो टेम्परेचर पर नए नए मटेरियल की प्रॉपर्टीज मालूम की जाती है ताकि पता किया सके इसकी इलेक्ट्रिकल और कंडक्टिविटी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, और किस टेम्परेचर पे जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंडक्ट करता है। तो वेरी लो टेम्परेचर पर लोगों ने टेस्टिंग किए मटेरियल लोगों, और उससे सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स जो है ना इन्वेंट किए। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल इसलिए ज़रूरी है रिसर्च के, वो जो फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जिस पर रिसर्च पिछले 50-60 साल से हो रही है, वो उसमें कंडक्टिविटी का मसला है। तो बहुत हाई टेम्परेचर इन्वॉल्व हैं, उसको कूल करने के लिए नियर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर मटेरियल क्रिएट किए जाते हैं, तो वो हाईली कंडक्टिव होते हैं, वो फिर हीट अप नहीं होते। तो उस पर रिसर्च हुई जो कि कॉन्फिडेंशियल है, जो पब्लिक को अभी तक नहीं मालूम, क्योंकि अभी तक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर मॉडल या प्रोटोटाइप बन चुका है, लेकिन अभी कमर्शियलाइज नहीं हुआ है। जो सुपर पावर्स हैं अमेरिका रशिया, हालांकि जब तो दुश्मन थे अमेरिका रशिया, रशिया में कम्युनिज्म था, उस वक्त भी ये जॉइंटली काम कर रहे थे। और इसका एक मॉडल मैंने मॉस्को की एग्जीबिशन सेंटर में बाकायदा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का मॉडल भी देखा था, जो वहाँ पड़ा हुआ। तो अब ये जो है इसको कूलिंग के लिए वेरी लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। और मैग्नेटिक कूलिंग जो जो लोगों ने तरीका मालूम किया वो ये है कि एक साल्ट है जिसको आप गिडोलिनियम सल्फेट कहते हैं,
गैडोलिनियम सल्फेट, वो यहाँ एक सिलेंडर है, ये नीचे अंदर आप देखें सिलेंडर के अंदर सिलेंडर है 1 2 3, ये एक वेसल है यानी टैंकी है जिसमें 3 लेयर्स हैं, 3 सिलेंडर से बनी है, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर डाले गए, जिस तरह थर्मोस आपने देखा होगा पुराने जमाने में होता था जिसमें वैक्यूम ट्यूब होती थी। तो ये आउटर लेयर है मेटल की सरफेस की, और बिटवीन 2 सिलेंडर्स ये लिक्विड, इसमें लिक्विड हीलियम डाला जाता है। लिक्विड हीलियम का जो है ना वो 4 डिग्री केल्विन पे जो है ना सेचुरेशन टेम्परेचर 4 डिग्री केल्विन पे ये जो है ना वो लिक्विड होती है, और ये इन 2 लेयर्स में एक और सिलेंडर डाल दिया, 2 लेयर्स लिक्विड हीलियम की हैं। मकसद ये है कि बाहर रूम टेम्परेचर जो भी है 40 से 50 है, अंदर इस साल्ट का टेम्परेचर पता है कितना है, ये रहा T is equal to 0.001 Kelvin. This is almost 0 degree absolute. 0 डिग्री 001 यानी कि 0 डिग्री एब्सोल्यूट का भी 1000वां हिस्सा। वहां तक ये साल्ट ठंडा हो जाता है एक प्रोसेस के जरिए, इस ये ऊपर से सब सील्ड है, बंद है, और इसकी 2 लेयर्स हीट ट्रांसफर को रोकती हैं ताकि अंदर की जो बाहर की गर्मी जो है हीट जो एटमॉस्फेरिक हीट अंदर इसमें न जाए, ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके वेरी वेरी डीप नियर 0 एब्सोल्यूट। तो ये साल्ट है और इसका नाम है, ये एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है और इसको गैडोलिनियम सल्फेट कहते हैं, गैडोलिनियम सल्फेट GdSO4। तो ये राइट और लेफ्ट पे ये पोल दिखाए गए, मैग्नेटिक पोल N और S, नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, एंड दिस इज वेरी हाई पावरफुल मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर, विद इन मैग्नेटिक फील्ड वी हैव टू कीप देम। तो मैग्नेटिक फील्ड पहले अप्लाई की जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, स्विच ऑन किया, बहुत हाई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई। तो ये जो साल्ट के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो ओरिएंटेशन करते हैं मैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से, वो अपने आप को ओरिएंटेशन करते हैं, एक डायरेक्शन में अलाइन कर देते हैं। जब वो अलाइन कर देते हैं तो फिर हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देते हैं बाय स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच ऑफ हो जाते हैं तो फील्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाती है। तो फिर जो साल्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को दोबारा डिसओरिएंट करते हैं, यानी डिफरेंट डायरेक्शन में दोबारा मूव करते हैं। तो ये उस सूरत में वो अपने अंदर की एनर्जी लेकर वो अपने दोबारा डिसऑर्डरलीनेस में आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि मजीद उनका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। जब उनका डिसऑर्डरलीनेस हो जाती है तो मॉलिक्यूल दोबारा ऑर्डर में लाने के लिए फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है, और जब ये फील्ड अप्लाई करते हैं तो फिर वो अपने आप को ओरिएंट करते हैं मॉलिक्यूल। तो इस बार बार ओरिएंटेशन डिसओरिएंटेशन बाय द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड हटाते हैं। तो ओरिएंटेशन डिसओरिएंटेशन से वो अपने अंदर की हीट एब्जॉर्ब करते हैं और खारिज करते हैं। उससे वो हीट जो है ना, ये हीलियम की जो सरफेस यहाँ के थ्रू हीट ट्रांसफर होकर एब्जॉर्ब हो जाती है और ये जगह बिल्कुल ठंडी रहती है, और हर बार ठंडी होते होते 0.001 केल्विन तक इस साल्ट का टेम्परेचर आ जाता है। तो इसके बारे में ये ऊपर नोट्स बने हुए हैं जो मैंने आपको बताया है, वो पढ़ लें। दिस मेथड में बी यूज फॉर अचीविंग नियर एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन लेबोरेटरी कंडीशंस फॉर फंडामेंटल साइंटिफिक रिसर्च ऑन एडवांस मटेरियल्स। ये इसका मकसद है। जिससे टॉप सीक्रेट लैब्स हैं अमेरिका में और वहाँ रिसर्च हुई है, 1980s में हुई है, 1990s में हुई है, अभी तक हो रही है, और वो चाहते हैं कि कोई ऐसा मटेरियल बनाए जो सुपर कंडक्टर, और कुछ जापान को और अमेरिका को उसमें कामयाबी हुई है, लेकिन वो शेयर इसलिए नहीं करना चाहते कि ये बड़ा महंगा सौदा है, इसमें बड़े मिलियन ऑफ डॉलर खर्च होते हैं, बड़े बड़े साइंसदान इसमें इंजीनियर इसमें लगे हुए हैं कई सालों से। तो वो जब कामयाबी होगी तो उसका फ़ायदा उन्हीं को होगा, किसी और को ना हो। तो वो सीक्रेट इसलिए रखते हैं, कोई उनका राज जो है ना पहले से चोरी करके उनसे पहले एडवांस में यानी टेक्नोलॉजी में तरक्की ना करें। तो ये एडवांस मटेरियल की रिसर्च करने के लिए बनाए जाते हैं, और इन दिस मेथड ऑफ क्रिएटिंग अल्ट्रा लो टेम्परेचर सम पैरामैग्नेटिक साल्ट gadolinium sulfate is cooled with liquid helium boiling at reduced pressure। ये 0.7 यानी लिक्विड हीलियम जो है 0.7 केल्विन, ये भी नियर एब्सोल्यूट 0 है, ये बॉयल कर रहा है। तो ये जो इनिशियल हीट है जो गैडोलिनियम सल्फेट
कि उसको ठंडा करके 0.7 तक वो ले आता है, लेकिन 0.7 भी बड़ा हाई टेम्परेचर है, यानी 0.7 यानी एक डिग्री में बस 0.3 का फर्क, 0.7। अच्छा, अब उससे भी नीचे जीरो करने के लिए, जीरो नहीं 1000 अब डिग्री केल्विन तक ले जाने के लिए आप उसको मजीद मैग्नेटिक फोर्स यूज करते हैं। तो विद लिक्विड हीलियम कूलिंग प्लस मैग्नेटिक फोर्स कूलिंग, उससे आपकी मैग्नेटाइजिंग और मैग्नेटाइजिंग और फिर दोबारा मैग्नेटाइजिंग से वो मटेरियल हीट लूज करके 0.001 केल्विन तक पहुंच जाता है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बड़ी पावरफुल है। यहाँ डेटा दिया हुआ है कि सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ हीलियम 0.7 केल्विन दिया हुआ है, दूसरा 25,000 गॉस दिया हुआ है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट जो है ना 25,000 गॉस का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। द हीट जनरेटेड ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट इज एब्जॉर्ब बाय द बॉइलिंग हीलियम कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हीट क्रिएट होती है, तो वो भी हीलियम अपने ऊपर ले लेते हैं। While keeping the salt under these conditions of temperature below 1 Kelvin, strong magnetic field is removed. The salt gets demagnetized adiabatically. Adiabatically का मतलब इसकी वॉल्स इंसुलेटेड है और हीट ट्रांसफर नहीं होता आपके, यानी कि हीट ट्रांसफर मजीद नहीं होता, क्योंकि जो टेम्परेचर साल्ट का है वही टेम्परेचर हीलियम का है। तो हीलियम 0.7 केल्विन है और साल्ट का भी 0.7 जब हो जाता है तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाता है। तो अब इस पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहता है, जो इस हालत में मैग्नेटिक फील्ड हटाते हैं तो वो एकदम 0.001 पे पहुंच जाता है, उसका टेम्परेचर डीमैग्नेटाइज होने से। The salt gets demagnetized adiabatically, which further lowers the temperature up to 0.001. यानी इसमें हम पहले लिक्विड हीलियम के जरिए 0.7 तक साल्ट को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं और उसको अंडर मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, और हीट ट्रांसफर जो है ना वो हीलियम अपने ऊपर ले लेता है, जो मैग्नेटिक की वजह से हीट क्रिएट होती है। उसके बाद हम अचानक मैग्नेटिक फील्ड को ख़त्म कर देते हैं, तो उससे डीमैग्नेटाइज करने से हीलियम साल्ट ऑलरेडी 0.7 केल्विन पे पहुंच चुका है, तो अब हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, क्योंकि उसका अंदर का टेम्परेचर और उसकी बाउंड्री वॉल का टेम्परेचर सेम है, तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसलिए इसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहेंगे। तो अंदर एडियाबैटिक कंडीशन जब हम डीमैग्नेटाइज करेंगे तो वो सारी की सारी हीट अपने अंदर से लेगा, इसलिए उसका टेम्परेचर मजीद ड्रॉप होकर 0.001 केल्विन हो जाएगा। अच्छा, ये जो है इक्विपमेंट के नाम जो है वो यहाँ दिए हुए। ये जो मैंने दिखाया था कि मल्टी 3 सिलेंडर है, सिलेंडर इन द सिलेंडर, इसको हम ड्यूअर अपरेटस भी कहते हैं, ड्यूअर अपरेटस। और ड्यूअर अपरेटस का काम ये है कि ये बहुत लो टेम्परेचर पे आपको एक स्टोरेज प्रोवाइड करता है। तो ड्यूअर अपरेटस फॉर लिक्विड हीलियम और वैक्यूम पंप टू क्रिएट लो प्रेशर हीलियम। तो ये जो सिलेंडर है ये तो यहाँ से आपको कटा हुआ दिखा है, ये कटा हुआ नहीं होता, ये हमने आपको शो करने के लिए दिखाया। ये एक्चुअली क्लोज्ड है, ये क्लोज बॉटल है, बिल्कुल बंद बॉटल है, और इसके आसपास हीलियम है, 2 लेयर्स हैं, हीलियम की 2 लेयर्स हैं। तो ये ड्यूअर अपरेटस कहलाता है। और इसका काम क्या है कि ये टेम्परेचर यानी कि नियर एब्सोल्यूट जीरो मेंटेन करते हैं। तो उसमें अच्छा, इसमें वैक्यूम करेंगे तो ये इतना लो टेम्परेचर देगा। वैक्यूम क्रिएट करने से ये बॉयल होगा, और यानी कि 1 बार प्रेशर नहीं होगा उसको, वैक्यूम यानी कि बिलो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो उससे वैक्यूम क्रिएट होगा, उससे हीलियम जल्दी बॉयल होगा। तो जब हीलियम बॉयल होगा तो वो 0.7 तक केल्विन तक टेम्परेचर पहुंचा देगा। हीलियम, लिक्विड हीलियम इन वैक्यूम एट सैचुरेटेड टेम्परेचर 0.7 केल्विन। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ 25,000 गॉस। कूलिंग प्रोसेस कैसे कूलिंग होती है? पहले तो हीलियम वेपराइज होता है, उससे कूलिंग होती है, और उसके बाद मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजिंग ऑफ साल्ट एडियाबैटिकली, उससे फर्दर कूलिंग होती है। तो ये वो सारा सिस्टम है जिससे आपको एब्सोल्यूट जीरो, इस सिस्टम को हम एब्सोल्यूट जीरो अचीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं लैब कंडीशन में। तो इसलिए कि हमें कुछ मटेरियल पे रिसर्च करनी होती है जो कि अभी तक सीक्रेट है और मार्केट में नहीं है।
तो इसके लिए काफ़ी सालों से रिसर्च हो रही है और कुछ कामयाबी हुई होगी, वो बताते नहीं। आपने देखा होगा कि ये वो मटेरियल है जिससे मैग्नेटिक लेविटेशन वाली ट्रेन बनाएगी, बुलेट ट्रेन जिसको कहते हैं, जो पटरी के ऊपर नहीं चलती, पटरी से उठ के हवा में चलती, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। क्योंकि वो जो पटरी है वो दरअसल वो मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें यानी मैग्नेटिक कॉइल्स हैं, और जो ही वो चार्ज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो जो ट्रेन है उसकी बॉडी हवा में खड़ी हो जाती है, और उस बॉडी के अंदर जो लगे हुए मोटर्स, उसकी मैग्नेटिक फील्ड चार्ज होकर वो चल पड़ती है, और उठकर नहीं आप बराए नाम टच करते हुए रेल उसके पहिए से इसलिए टच करते हैं जब आप मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हैं। तो पहले वो जो मोटर है, आपने देखा घरों में ये जो मोटर होती है उसमें एक होती है केसिंग जिसको हम स्टेटर कहते हैं, और एक होता है रोटर। तो इसमें एक्चुअली जो केसिंग है, मोटर की केसिंग, वो तो गोल्ड सिलेंडर होता है। ये आप पटरी को केसिंग समझें। केसिंग को अगर खोल के लंबी पटरी बना दें मीलों तक तो ये कहलाएगी लीनियर मोटर। लीनियर मोटर तो केसिंग एक्चुअली स्टेटर का काम करती है, जो पटरी है ये स्टेटर का काम करती है, इसमें वाइंडिंग्स है। और वो जो रोटर है वो गाड़ी के अंदर है, तो वो ट्रेन के अंदर। तो जब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो एक तो उठ भी जाती है पटरी से, और उसका रोटर चलना शुरू करता है और गाड़ी बुलेट की तरह चलना शुरू हो जाती है। तो वो बुलेट ट्रेन में जो मटेरियल यूज होते हैं पटरी में और उसकी वाइंडिंग में, वाइंडिंग का जो मटेरियल है वो सुपर कंडक्टर होना चाहिए, हाईली कंडक्टिव होगा तो हीटअप नहीं होगा। आम कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर है, कॉपर बेस्ट कंडक्टर, लेकिन वो भी उसके आप देखेंगे मोटरें अक्सर जल जाती हैं जब उस पर लोड पड़ता है। तो चूंकि बुलेट ट्रेन में बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है तो उसकी वाइंडिंग बहुत ठंडी होनी चाहिए। तो उसके ठंडा ठंडा करने के लिए सो ये जो है ना इस तरह के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि मैग्नेटिक लैब में बनाए गए हैं। तो इस तरह के मटीरियल क्रिएट किए गए हैं जो क्रायोजेनिक तरीके से यानी कि हाइड्रोजन या हीलियम की लेयर से वो ठंडे किए जाते हैं। तो इसलिए इसका इस्तेमाल वहाँ भी है। तो उसके बाद आपको क्वेश्चंस देंगे टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स पर, और उससे पहले वेपर कंप्रेशन सिस्टम पर। तो दो असाइनमेंट हम देंगे आपको, और ये आपको करने होंगे विद इन 5 days। और जो डेट दी गई है वो फाइनल है, उसमें जो लेट होगा उसको नंबर नहीं मिलेंगे, और उनका सबमिशन जो है ना कैंसिल कर दिया जाएगा। सबमिशन के लिए जो शराइत रखी जाती हैं उसकी पढ़ने की जहमत किया करें, बगैर पढ़े लिखे आप कोई काम ना करें। तो आपसे कहा जाता है कि आप ये करें वो करें, किस तरीके से बनाएं, किस फॉर्मेट में बनाएं, आप टाइटल पेज बनाएं, नाम लिखें, रोल नंबर लिखें। तो कई ऐसे जाहिल स्टूडेंट से वास्ता पड़ता है अनफॉर्चुनेटली। इन सारी रिटर्न हिदायत के बावजूद और ज़बानी हिदायत के बावजूद वो ना तो नाम लिखते हैं अपने सबमिशन पे, ना डेट लिखते हैं, ना सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, ना रोल नंबर लिखते हैं। तो ऐसी चीज़ को हम फेंक देते हैं, हम उसको नंबर नहीं देते। जब हमें नहीं पता है किसका है, ये क्या है, किस टॉपिक का है, किस डेट का है, और कौन सा टॉपिक है, कौन सा होमवर्क है, सबमिट करने वाला कौन है, उसका रोल नंबर क्या है, हम उसको कैसे नंबर दे सकते। तो ये सारी वार्निंग के बावजूद कुछ जाहिल, लापरवाह और सुस्त और कायल लोग ऐसे हैं जो इन इंस्ट्रक्शन की परवाह नहीं करते, और इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद वो अपनी मर्जी करते हैं, और बस कहीं से कॉपी करके या फोटो करके बगैर नाम के, बगैर डेट के सबमिट कर देते हैं। तो फायदा क्या भाई ऐसे जल्दी के काम का, जब आपसे कहा जाता है। और ये यही नहीं होता, ऑनलाइन नहीं हो रहा। ये मैंने देखा है कि ये जो फिजिकल एग्जाम होता है उसकी आंसर शीट पे भी लोग नहीं करते, और उससे बड़े जाहिर वो इन्विजिलेटर हैं जो ये चीज़ चेक नहीं करते। इन्विजिलेटर का काम है कि वो चेक करे कि आंसर शीट पे स्टूडेंट अपना नंबर लिख रहा है नहीं लिख रहा, साइन कर रहा है नहीं कर रहा, रोल नंबर लिखा है नहीं लिखा, और आइडेंटिफाई करता है उसको कि उसका एडमिट कार्ड है कि नहीं है। ये चीज़ें नहीं हो रही, ये जहालत हर तरफ चल रही है, और मुझे नहीं पता क्यों। इंजीनियरिंग कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। बताइए अगर किसी को नहीं मिला तो आप अपना, किसी के पास अगर ईमेल वगैरह मुझे नहीं पहुंचाई तो उसको नहीं मिला होगा। तो जिसने नहीं पहुंचाई वो भी मैंने रिटर्न इंस्ट्रक्शन पहले दिन सीआर को दी थी कि सबसे पहले उन लोगों के, मैंने उन लोगों के नाम भी लिखे थे कि इनके जनाब मेरे पास वो ईमेल नहीं है, इनसे पता करके मुझे दे दें। और अभी तक सीआर ने और ना ही उन लड़कों ने मुझे जवाब दिया।
तो आप हमेशा मुझसे ईमेल के जरिए कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप के जरिए नहीं। मैं सिर्फ ईमेल का हमें रिकॉर्ड रखना होता है, व्हाट्सएप का रिकॉर्ड नहीं होता। व्हाट्सएप हम आपको इसलिए करते हैं कि आप जल्दी से लिंक ढूंढ लें और पता चले कि अभी मीटिंग कितने बजे हो रही है। अदरवाइज ये लिंक भी हम ईमेल पे देते हैं। तो ओवर एंड अबव व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमने ईमेल कर दी है, आप ईमेल खोलें और आ जाए मीटिंग में। सिर्फ उसलिए हम यूज़ करते हैं। बाकी कोई चीज़ शेयर करना हो वो ईमेल के जरिए होगी, कोई लेक्चर नोट देने हो, होमवर्क देने हो, असाइनमेंट देने हो, होमवर्क असाइनमेंट जमा कराने हो, वो कोई भी व्हाट्सएप पे नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ईमेल के जरिए करेगा, जो मैंने आपको ईमेल दी है akhan809@gmail.com। इसके साथ ही वक्त खत्म होने वाला है, कुछ सवाल हो तो करें। जूम का वक्त खत्म हो गया है, वार्निंग आ गई है। मैं वाइंड अप, आप जल्दी से सवाल एक आध करना तो करें। सीआर अपनी आज आपने जो व्हाट्सएप की है अटेंडेंस, ये भी गलत तरीका है। मैंने कहा है कि ये हमें रिकॉर्ड रखना होता है, ये रिकॉर्ड हमसे ऑडिट होता है, चेक होता है। इंजीनियरिंग काउंसिल वाले चेक करते हैं और यूईटी वाले चेक करते हैं कि आपने क्लासें ली, उसका रिकॉर्ड बताओ। अगर व्हाट्सएप में हम रिकॉर्ड नहीं रख सकते, व्हाट्सएप फजूल चीज है। व्हाट्सएप तो मोबाइल है, वो छोटा सा मैसेज होता है, छोटी सी स्क्रीन है। हमें ईमेल पे अपने कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी रखनी होती है। तो आप सारी करस्पॉन्डेंस आप मुझसे ईमेल के जरिए करेंगे और अटेंडेंस शीट भी आप ईमेल करेंगे और इसी तरह बनाएंगे जिस तरह ये आज आपने भेजी है कि उसमें आपने नाम लिखे हैं, सबके नाम लिखे हैं और आगे डेट डाली। तो 28 को हमारा लेक्चर मिस हो गया, आप उस पर लिख दें कि चहलम की वजह से लेक्चर नहीं हुआ, तो उसका कंपनसेटरी लेक्चर हम इंशाल्लाह कल ले लेंगे। आज तो आपके पास टाइम नहीं, हाँ आज आपके पास टाइम नहीं, हम एक्स्ट्रा लेक्चर वक्त हुआ तो कल ले लेंगे। अभी वैसे मेरे पास इंटरनेट का वो पैकेज भी खत्म हो चुका है, तो वो अगर अपडेट हो गया तो वो कल लेक्चर हो जाएगा, वरना नहीं होगा। ठीक है जी, ओके सर। ओके। अल्लाह हाफिज सर।